हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। वेलकम इन दिस वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस RMS exam that was conducted recently on this Sunday. In this video we are discussing the solution of class 9th RMS exam. First we will do mathematics parts in which you can also analyze your solution, how many questions you have done correctly. Every solution is 99% accurate. May 1-2 question vary according to answer sheet, but all solution are perfect. I am sure about that. They are correct accordingly as you see. Sorry. First question: in how many ways can a rectangle be cut so that each part is symmetrical to the other? Answer of this question is 2. Like this is rectangle, we can cut like this portion and this portion, it making two symmetry. Second is an isosceles triangle, right angle, perpendicular, and answer. I am not reading complete question, just I am telling about answer of this, so you can match accordingly. Second question answer is 8. Like this is the parallelogram and this is right angle triangle, this side is height 8. तो जितना मतलब फास्टली आई कैन डू आई विल डू, आई डू द क्वेश्चन क्विकली because we are only discussing here the solution of the questions. So please, if you need complete solution then you can tell me, I will make a video for that later on. The mean of the number, you have asked about mean. Mean is given 10 here and you have asked about the value of y. The correct answer is 10, option D. And the next question is it's saying that two parallel lines of equal length and cutting by two other parallel lines of equal length, then the name of this figure formed. So this figure form is square. The correct answer is option C, square. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि चैप्टर 7 रन्स फ्रॉम 121 टू 140, सो 20:420. द करेक्ट आंसर इज 450 आएगा, 450. 20:240 विच इज राइट आंसर इज 2:45. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, A angle is equal to angle B, then angle C is 125. So correct option is angle A equal to B, 27.5 degree. Next option, correct answer is 7. Correct option is option C. Next question, trader bought a chair and 750 is correct answer is 7.25 loss. Next question number 109, correct answer is sum of angle in a quadrilateral is 360. Option B is the right answer. Circumference of circle is 488. What is the radius? You have asked about radius, then correct answer is option D. Correct answer is option D. Which of the following is a non-zero integer? Non-zero integer integers पूछा गया आपसे, then correct option is this, because root 16 is plus minus 4, and both are non-zero integers. 95 degree Fahrenheit into Celsius, you can do it from option. Formula is F equal to 9/5 C plus 32. You can convert it from this formula. Correct answer is option C, option D, sorry, option D is the right answer. Next question number 113, and correct option is option B. This is the right answer. A car was bought 75, it depreciate 12% per annum. Depreciate mean decrease होना. What will be value after 1 year? Then correct option is A, 66,000. 115 question. The correct option of this answer is 900. Option A is the right answer. Regular polygon, the number of sides can be find out by 360 by n.
n or angle, you can write here angle 45 degree, which is cancel out at 8. So number of side is 8. Option B is the right answer. Next question, if 12 pair cost rupees 18, how many pen can be cost for 30? The correct option is 20. Answer B is the right answer. Height of trapezium is given, area is given, you have 3 times the other, then the one side will be 7 and other side will be 21. You have asked about longer side. The correct option is option D, 21 centimeter. A equal this, B equal to this, and all both the triangle have same sides all, so side congruence rule will be followed. How many faces square pyramid have square bases? And here and here 3, 4 and 5. Mean square pyramid have 4 faces here, 1 2 3 4 and one bottom face, so total face is 5. Square pyramid have 5 faces, and that's all the answer, option D. In a cuboid equal volume, then what is the volume of the cube? You have asked about volume of the cube, that is option A, 512. Next question, answer is 120 by 19. Option D is the right answer, 120 by 19. Next question, number 123, and the right answer here is 10 centimeter, option A. 124 number question, 3 times a number is equal to number plus 18, mean 3 times a number is equal to number plus 18. From the option you can do easily, that is the 9. 9 is the right answer. Which of the following evaluate to an integer? This is the integer. This will give value of minus 9 by 3. You will cancel out at 3, which is equal to 3. So correct answer is option C. Next question, option A, 2200 CP and SP is 2200 by 12, 2200 into 100. You can find out easily percentage, 9.09%, option A. Here not asking about approximate answer. If you go for approximate, then this will be your answer, but question is not asking about approximate answer. You have to find out exact value, that is 9.09%. option A is the right answer. Next question, 127 number question. Maybe there is some mistake in question here, typing mistake. It is a question is saying that 3 times the half of twice a number is equal to minus 4 times its quarter. Minus 4 times mean 4 times what? minus 4 टाइम. तो यहाँ पे मीन स्पेसिफिकली फिगर आउट नहीं हो रहा है कि माइनस ये किस नंबर में से कह रहा है कि आपको माइनस करना है, लेकिन एग्जैक्टली व्हाट फ्रॉम विच नंबर यू आर टेलिंग अबाउट टू माइनस. सो ओनली जो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है वो क्या है? ऑप्शन डी सही बैठ रहा है. कि इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, कंसीडर करते हैं, तो जो ऑप्शन सी है वो क्या है? सही बैठ रहा है. क्या करें कि 3 टाइम हाफ ऑफ ट्वाइस ए नंबर, कि 0 का ट्वाइस क्या हो गया, और उसका हाफ करेंगे तो 0 ही आएगा, और उसका 3 टाइम कर दें तो भी 0 ही आएगा, और इसका 4 टाइम और क्वार्टर करें तब भी यही आएगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये सही बैठ रहा है. यहाँ पे माइनस है जो परफेक्ट ये नहीं बैठ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, मे बी सम मिस्टेक है टाइपिंग. ए पॉलीहेड्रॉन हैव 18 एजेस. तो जो फार्मूला होता है F प्लस V इज इक्वल टू E प्लस 2, यूलर फार्मूला जो होता है, इसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो. यहाँ पर 18 एज है और 18 प्लस 2 20, और F वहाँ जाके माइनस हो जाएगा. तो वर्टिसेस पूछा गया आपसे, 20 माइनस 8 12 इज़ द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया जो निकल के आएगा यहाँ से आपका पाई निकल के आएगा, ऑप्शन बी. What is the minimum number of subtract to make it a perfect square? Minimum required value is 4, because 196
दैट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ट्रायंगल पी क्या हुआ आ रहा है, हैज़ एंगल 50, 70 एंड 60 डिग्री। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि ट्रायंगल कौन सा है, तो आप देख रहे हो ये तीनों ही एक्यूट एंगल है, तो आपका जो आंसर होगा वो एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्केलन नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या है कि स्केलन बोल रहे हैं जो बच्चे हैं, लेकिन यहाँ स्केलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल आपको दी गई है एंगल के अकॉर्डिंग दिए गए हैं तीनों, यहाँ पर साइड का जिक्र नहीं है। साइड का जिक्र नहीं है तो आपका परफेक्ट आंसर होगा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के साथ जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है साइकिलिस्ट गोज, और आपसे पूछा गया फाइंड स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट। तो स्पीड जो होगा ऑप्शन ए आएगा यहाँ से सॉल्व के बाद। ऑप्शन ए 4.033 मीटर। नेक्स्ट में 2 लाइन्स है, तो यहाँ से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट में आपको मेनली जो एलसीएम निकालना था, इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम निकालना होता है कि बाद में कितने सेकंड के बाद वो एक साथ होंगे। तो 216 राइट आंसर आएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डायमीटर ऑफ सर्कल इतना है, एरिया पूछा गया है 3.14, वही वाला हो जाएगा। ऑप्शन ए आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है इनको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लीस्ट परफेक्ट क्यूब डिविजिबल बाय 4 एंड 6, आप क्या करोगे 4 एंड 6 का एलसीएम फाइंड आउट करोगे। 12 होगा, 12 के बाद देखोगे कि कौन सा क्यूब है जो इसके मल्टीपल में है, ये वाला है 216। नेक्स्ट में क्या है ग्राफ विच डाटा पॉइंट आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन। ऐसे डाटा पॉइंट है जिनको आप ऐसे कनेक्ट कर देते हो तो क्या है लीनियर ग्राफ, मतलब लाइन का ग्राफ बन जाता है ये, जो कि करेक्ट होगा ऑप्शन बी। फाइंड द वैल्यू सेटिस्फाई, जिस आप इसमें जब वैल्यू पुट करके देख सकते हो इसको ईजिली, तो ये ऑप्शन है वो करेक्ट सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ द राइट आंसर। मीडियन निकालना है, अरेंज करें डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद बीच वाला जो वैल्यू होगा 9, दैट इज़ योर मीडियन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एंड हेयर एल मीन 50 प्लस 20 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 75, एंड माइनस हो जाएगा 20 प्लस 4 मीन 24, 75 माइनस 24 दैट इज 51। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में हमारा जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, येस। The multiplication of two negative integer is always gives a positive integer, yes. Both correct statement are correct, but both are not related with each other, both are independent. So option B is the right answer. Both are true but reason is not correct explanation of assertion, because क्योंकि जरूरी नहीं पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर का जिक्र है या नेगेटिव इंटीजर का जिक्र है, ठीक है, तो दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट है। एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इतना है, आपसे लेंथ ऑफ वन साइड पूछा गया है, तो जस्ट इतना देखिए किसका स्क्वायर है, ये 45 का स्क्वायर है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और यहाँ से आप MDS लगा के निकाल सकते हो, और आपका जो आंसर आएगा करेक्ट वो 9 डेज आएगा। नेक्स्ट में पूछा गया परपेंडिकुलर की एक ट्रायंगल है ऐसे, उसमें इस वर्टेक्स से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, तो सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, ना कि आपसे ये कहा गया कि जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर होता तो मिड पॉइंट होता, लेकिन परपेंडिकुलर है, दैट मीन सामने वाली साइड के ऊपर आएगा ये। तो हमारा आंसर क्या पूछा कि मीट एट वट, तो ये सामने वाली अपोजिट जो साइड होगी उसके ऊपर मीट करेगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू 6 का वो 60 है, फेस वैल्यू 9 है, दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन सी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पूछा गया है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। और नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया, डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है √2a, ऊपर से आप साइड निकाल लोगे, a आपका आएगा 8, तो 8 √2 आपका करेक्ट ए ऑप्शन हो जाएगा। 2 डाइस है वो 2 डाइस को उछाला गया, टोटल आउटकम हो जाएगा 36। और क्या पूछा गया, सम है वो 2 डाइस पे 7 बनना चाहिए, तो आपके पेयर बनेंगे 3 4 4 3 1 6 और 6 1, ये हो गए। उसके बाद 2 5 और 5 2, तो 6 पेयर हो गए आपके टोटल 36 में से, तो आपका आ जाएगा 1/6। 1/6 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये कंप्लीट आपका डिस्कशन था ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट। तो इसमें आप एनालाइज कर सकते हो अपना कि कितना करेक्शन आपका क्वेश्चन है वो कितना सही है और कितना गलत है, ठीक है। ये किसी बच्चे का पेपर है,
जो यहाँ पे स्टडी करते हैं मेरे पास, तो उनसे जो पेपर है मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे बनाया है मैथ का। ठीक है, तो आप का कितना सही है और कितना गलत आप कमेंट ज़रूर करें, बताएं। बाकी सब्जेक्ट का चाहिए तो मैं आपको बना के और डाल दूँगा, कल उसमें डिस्कस कर लेंगे बाकी का चाहिए तो, वरना मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा। फेसबुक पे ग्रुप है स्टूडेंट्स का, वहाँ पे शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो इसमें आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें, कितना स्कोर। और यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, यू मस्ट नीड 40% इन ईच सेक्शन। जो क्वालिफिकेशन है आपका क्या कि हर सेक्शन में आपका 40% का क्राइटेरिया आपको होल्ड करना चाहिए। मीन जैसे मैथ का 50 मार्क्स का क्या है आता है आपका सब्जेक्ट, तो इसमें 40% नंबर आने चाहिए आपके। मीन 20 मार्क्स आने चाहिए आपके, तभी आपका जो पेपर है वो एवेल्युएट होगा, चेक होगा। ठीक है, तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है हर सब्जेक्ट के लिए ये। ओके स्टूडेंट्स, बाय।